हमारे साथ यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सांसद भाई आशीष दुबे जी, पूर्व में उपस्थित हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे दूरसंचार मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल जी, बीएसएनएल के सीएमडी रॉबर्ट रवि जी, अनिल जी, निजी क्षेत्र के हमारे सभी सहभागी, क्योंकि एक ही कड़ी में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। वी आर ऑल cogs of the wheel of motion that brings alive this technological communication revolution to the grassroots of India. And for that, I thank all our members, Nitin Bansal ji from Ericsson, Savi Sonan Sahib from Qualcomm, Tarun Chhabra ji from Nokia, Harish Krishan ji from Cisco, and my friends from the media present here today. Today is a very historic and landmark day. The Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has always had a vision of India first, a vision of growing India into a Vishwaguru, and that vision of growing India into a Vishwaguru being powered by India, being powered by Indians, but being powered not only for India, but for the world. And today that vision of local to global, that vision of make in India but make for the world, that vision of India not only being a source for services, but a vision for India to become in the future a source for products, is today being translated into reality by all the gentlemen seated here today. Whether it is Savi ji, whether it is Chhabra ji, whether it's Harish ji, whether it's Nitin ji, the thousands of workforce behind them in India, multiples of that workforce spread across the world. But today, the spotlight is on India. Because we represent, as Prime Minister has said, not only the largest market in the world, but we represent a significant opportunity, as close to 50% of the world's human resource talent today resides in India. So, ladies and gentlemen, today is the beginning of a new dawn. एक नए सूर्योदय की शुरुआत है, और एक नया सूर्योदय जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, व्याख्यात कंपनी, जिन्होंने अपनी शुरुआत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ शुरू की, these representatives that you see before today, they are not only representatives of their organizations, but they are representatives of the world's intellectual property wealth that today is focused in India. I'm very proud to be associated with all of these four companies. They are companies that I have interacted with whilst I was in the Valley at Stanford Business School. व्याख्यात हैं अपने नवाचार के लिए, अपनी क्षमता विश्व को नए युग में ले जाने के लिए, चाहे वो क्वालकॉम हो अपने प्रोसेसर्स के आधार पर,
चाहे नोकिया हो अपने प्रोडक्ट्स के आधार पर, चाहे सिस्को हो अपने राउटर्स के आधार पर, चाहे एरिक्सन हो अपने टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के आधार पर, अपने ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट्स के आधार पर। और ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो अदृश्य हैं। They're all invisible. They're not things that you and I can see. But they are the most important carriageway and highway जिसके आधार पर आज संपूर्ण विश्व का संचार किया जाता है। And today we have these 4 organizations working with BSNL, which in its own way has been the landmark organization जहां व्यक्ति के दिल के साथ जोड़ने का कार्य इस देश में अगर किसी ने शुरू किया तो वो क्रांति शुरुआत की गई बीएसएनएल के द्वारा। And so you have a confluence happening today, a confluence between the world and India, a confluence between India's talent and the future for the world. And therefore, from the bottom of my heart, I want to thank all 4 of these gentlemen. ये आसान बात नहीं रही है। सभी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत हुई क्वालकॉम के साथ। फिर हम सचिव जी और हमने विभाग ने इस पर मंथन किया और उस मंथन में से सभी लोगों को एक साथ लेकर अब धीरे धीरे कुछ अमृत निकल रहा है। और इसकी प्रेरणा अगर किसी ने हमको दी है, हमारे विभाग को दी है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज के दिवस पर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि सदैव विकास के पथ पर, प्रगति के पथ पर उनका सकारात्मक योगदान केवल नहीं, लेकिन उनकी समस्त रुचि सदैव रहती है। और आज जो हमारी संस्था है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, बाबा साहब अंबेडकर की सोच केवल भारत के संविधान के प्रति सीमित मत रखिए। उनकी सोच एक नवीन भारत का उदय हो, ये उनका संकल्प था, ये उनका प्रण था। और आज ये ही संस्था भारत की नौजवान को ऐसे आगे आकर मानव संसाधन के क्षेत्र में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करके केवल इन कंपनियों के साथ मिलकर कार्य नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इन कंपनीज के साथ विश्व की नई टेक्नोलॉजी की स्थापना हमारे भारतीय युवा करेंगे। इसका केवल मुझे नहीं, लेकिन पूरे विभाग को नहीं, लेकिन इन सारे कंपनियों को भी पूर्ण रूप से विश्वास है। और आज आप समझ लीजिएगा कि वो बीज प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर आज बोई जा रही है। हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि हम लोग उस रेल की ट्रैक की आज शुरुआत कर रहे हैं। हमारे 4 प्रमुख बोगी बीएसएनएल की बोगी के साथ जुड़ चुके हैं, तो 5 इंजन की ट्रेन पटरी पर चल चुकी है। और जैसे अभी अनिल जी ने कहा, जो 5 हमारे मुख्य बोगी हैं उनके साथ तेजस जुड़ने वाला है, टीसीएस जुड़ने वाला है, बाकी बोगियां भी जुड़ेंगी और ये एक एक्सप्रेस ट्रेन बनेगी जो त्वरित भी होगी, सुरक्षित भी होगी, समाधान क्षमतावान होगी और भारत के उपभोक्ताओं के लिए समर्पित होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आज एरिक्सन को। हमारे 5G एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज इस संस्था में स्थापित करने जा रहे हैं। 1 करोड़ का निवेश प्रथम चरण में किया जाएगा। 2000 स्टूडेंट्स, 2000 छात्रों को 1 साल में ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाएगी। 2 कोर्सेज चलाएंगे और दोनों कोर्सेज की अवधि 18 से 84 घंटे होगी। और वहीं इनके साथ इनके सहभागी सिस्को कृष्णन जी हमारे साथ हैं,
आज कोर्सेज शुरुआत की जा रही है। 30 घंटे के कोर्सेज चलेंगे और नोकिया छाबरा जी भी हमारे साथ हैं। 2 करोड़ का निवेश प्रथम चरण में किया जा रहा है। 12 हफ्ते की कोर्सेज चलेंगी, 2 कोर्सेज चलेंगी और सभी जी जहां 150 स्टूडेंट्स की प्री एनरोलमेंट ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। आज से कोर्सेज शुरू हो रही है, 2 हफ्ते की कोर्स होगी। तो ये आप अनुमान लगाइए कि हमारे जबलपुर, आशीष जी के जबलपुर में, राकेश जी के जबलपुर में, मोहन यादव जी के जबलपुर में, हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज विश्व का शीर्षक संस्थाओं की स्थापना उस बाबा साहब अंबेडकर की संस्था में की जा रही है। ये भारत के युग युगांतर के लिए एक नई शुरुआत होगी। छोटी शुरुआत है, पर मुझे विश्वास है जो क्षमता मेरे 4 सहभागियों ने यहां अर्पित की है, आने वाले दिनों में इस संस्था को बीएसएनएल से हम एक नई गति देंगे और इस संस्था में इन चारों संस्थाओं की और दूसरे संस्थाओं की फुटप्रिंट और आगे बढ़ेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि आज भारत निकल चुका है, एक नई क्रांति के प्रति निकल चुका है। मेरे सारे नौजवान दोस्तों को जो इन 4 संस्थाओं की और बीएसएनएल की छत्रछाया में एक नए युग की तरफ प्रस्थान करेंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप बीज हो वर्तमान की नहीं, आप बीज हो भविष्य की परिवर्तन की। और जो मौका आज आपको मिलेगा इन विश्व स्तरीय विश्व रूपी संस्थाओं के साथ काम करने में, अब चुनौती आपके सामने है कि आपको अपना हुनर इनके समक्ष रखना होगा ताकि आगे जाके इन संस्थाओं की कप्तानी भी मेरा भारत का नौजवान कर पाए। और इन संस्थाओं को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको इसी तरह तीव्र गति के साथ, सरकार और आप एक ही पन्ने के 2 पहलू हैं। आपके बिना भारत का काम नहीं हो सकता और सरकार के साथ मिलकर आपकी आकांक्षाओं को भी संपूर्ण रूप धारण हम लोग करवाएंगे। तो हमारी सोच विचारधारा है सदैव मिलकर कार्य करना और उसको एक नया रूप आज के दिवस पर हम लोग दे रहे हैं। मैंने 5 रिक्वेस्ट हमारी संस्थाओं के समक्ष रखा है जो शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं कि जो टेक्निकल ट्रेनिंग के कोर्सेज हम लोग वी आर पुटिंग इन प्लेस देयर, इन एडिशन टू द टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज, I would like you all to also put in a capsule for team building exercises within our students there. Technical training is a vertical. Team building becomes a horizontal. And so therefore, how do I work with Ashish ji? How does Ashish ji work with Neeraj ji? How does Neeraj ji work with Robert ji? That team building exercise also is a very important part of leadership, which you can impart. The second, as I have already mentioned to you, from this training, our students that excel, I would be very indebted if they are hired by our individual companies. Because today, wealth is not only intellectual property, but wealth is human talent. And that is something that India has a huge reservoir of. The third, जिन लोगों को आप प्रशिक्षण दोगे, the people that you train, if their names can find some place in the website of your companies. Mr. Sindhya trained by Cisco, Mr. Ashish Dubey trained by Qualcomm, Mr. Neeraj Mittal trained by Nokia. That gives a huge fillip to them and a boost to them internally. It's a small thing, but
it is a very important part of extrinsic motivation. My fourth request to you is, there are two ways to populate our training center. One is to wait for people to apply to you. The other is your own reach, which you have across the colleges of India. And if you can write to colleges saying that we have started this wonderful facility, the students who would like to come and partake from these courses that we are running in this institute, it will, using the analogy of telecom, provide a very robust, broad pipe of human resource talent coming into our training center. And if it comes from you, it will carry a much bigger weight. And the fifth, and that will be in stage 2, is as we look at modernizing this facility, if you can look at establishing labs of 6G, labs of quantum, labs of IoT, ML, new technologies within this institute. So these are my 5 requests to you to be able to assist this enterprise to really take off. आज के दिवस में मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और खास करके मेरे 4 साथियों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं. It is thanks to you that this thought pattern of Prime Minister Narendra Modi is really taking off in Jabalpur, and I am confident that this will be the beginning of many more achievements to come for an institute that is named after Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar. So congratulations to all of you and thank you to all of you. Let this be the beginning of many more feathers in your cap, many more successes to you, because in your success lies the youth of India's success. In your success also lies India's success. Thank you very much.